परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेय युवाचार्य प्रवर एवं समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरणीय महामहिम केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज जी पाटिल, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, श्री ML सिंघवी, श्री सुबोध भार्गव, श्री विनय कुमार, श्री KN मेमानी, मिसेस सरला बरलिया, श्री BP ढाका एवं सभी सम्मानित अतिथिगण का मैं सुनीता जैन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्थापना का ये शताब्दी वर्ष, स्थापना के 100 वर्षों के इस लंबे अंतराल को PhD CCI ने बहुत खूबसूरती के साथ तय किया है। देश के आर्थिक विकास में इस संस्था का अमूल्य योगदान रहा है। हम सब की तरफ से PhD CCI को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आमंत्रित कर रही हूं समनी वृंद को मंगलाचरण के लिए। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। इस उलझन का धर्म क्रांति ही है कमनीय किनारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। आमंत्रित कर रही हूं श्री KN मेमानी को अपने स्वागत भाषण के लिए। It is my privilege to welcome the Honorable Union Home Minister Shri Shivraj Ji Patil to the PhD House to inaugurate our seminar on ethics is a good business. It is a blessing to have Acharya Shri Mahapragya Ji at the PhD House during the centenary year of the Chamber, when we rededicate ourselves to continue to serve the community and place to run our businesses with utmost consideration for ethics. Our chief guest, Shri Shivraj Patil, is known for his sterling quality as a parliamentarian par excellence. You are admired for your uprightness, impartial handling of contentious issues, immense patience, humility, coupled with diligence and perseverance. I have the privilege to welcome Revered Acharya Shri Mahapragya Ji. He is not only a saint ceremony, having spent over 75 years of his life as a monk, but is a prolific writer, poet, philosopher,
and social reformer. Impressed by his teachings, Honorable President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, is writing a book co-authored by Acharya Sri Mahapragya Ji titled Beautiful Homes and Noble Nations. Acharya Sri has received several honors, including Communal Harmony Award. I would also like to welcome Sri Subodh Bhargava, Chairman Videsh Sanchar Nigam Limited, and also Varsila India Limited. Let me also welcome Dr. Abhishek Manu Singhvi, an eminent jurist and front-ranking senior counsel of the country. He is senior advocate, Supreme Court of India, and national spokesperson for the Congress Party. We are extremely privileged to have in our midst Dr. L.M. Singhvi, a great scholar, thinker, and visionary in our midst, a number of corporate leaders, senior officials from the government, members of the diplomatic community, academicians, journalists, and the representatives of civil society. I would also like to most heartily welcome each one of them to the PSDC Centenary Seminar. The subject of ethics is gaining increasing attention in this era of globalization, and businesses are constantly under great pressure to compete and grow. Speed is necessary, but not at the cost of ethics, and ethics cannot be practiced without transparency. For our Indian managers, the job ahead should be to focus on the management of human interactions. Great management is not only about technique, it's also about character. Where profits and growth are the only two objectives, dilution of ethical standards are inevitable. Human beings have a body and soul, and so too have corporate entities. For the body to grow and perform well, it has to remain in good state of health. While the soul engenders human qualities of concern, compassion, devotion, and sacrifice, corporations must also remain healthy, that is profitable to be able to perform well and grow. But additionally, they should have concern and compassion for the society of which they are a part. This seminar aims to address the ethical dilemma, making people believe that embracing ethics would limit their options, their opportunities, their very ability to succeed in business. May I now request Sri Vinay Kumar, past President of the Chamber and currently Chairman of PhD CCI Business Practice Committee, to make his opening observation. Thank you. Thank you very much. I join the President, Shri Memani, in extending most hearty welcome to all the chief guests and others who are present in this hall today. The very fact that the hall is overflowing shows that we all believe in ethics is good business. Business ethics is concerned with good and bad, or right and wrong behavior and practices that take place within a business context. Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted today to include a more difficult and subtle questions of fairness, justice, and equity. No one would dispute that fairness, justice, and equity. PhD Chamber of Commerce and Industry realizes that in our quest of advancement, the focus on ethics has as much meaning as any other economic issue. Ethics is a critical input, and the business has to make a serious note of it. It is in this context that few years ago, our chamber adopted this unique motto, ethics is good business. PhD CCI has instituted Ethics is Good Business Award in 1997 and has since recognized several individuals and companies for their good business practices.
In the end, perhaps when we go back, consciously or subconsciously, we could ask some of the questions ourselves. Am I always ethical? Am I mostly ethical? Am I somewhat ethical? Am I seldom ethical? Or sadly, I am not ethical. Thank you very much. उन डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को मैं आमंत्रित कर रही हूं उनके वक्तव्य के लिए। If one were to encapsulate the topic of this seminar into two words, ethical business, one may be forgiven for caustically describing it as a classic example of an oxymoron, two polar opposites. There can therefore be no greater validation for a seminar like this than to discuss the decline and or the absence of ethics and morality in business, in the professions, in public life, in politics, in governance, in the media, and so on. The sad fact is that we live in an era where ethical governance, ethical business, ethics in law or medicine, or indeed several other sectors, are etymologically defined as polar opposites or oxymorons. The Turnbull report and the Cadbury report in UK, the Kumar Mangalam Birla report, the Government of India recommendations, the amendments to the Companies Act in India, all sought to address this central dilemma of morality in corporate governance, of ethics in business. A dilemma summed up many years ago by the English jurist Lord Thurlow when he said, and I quote, he said, "Did you ever expect a corporation to have a conscience when it has no soul to be damned and no body to be kicked?" Ethics in business is therefore all about integrating the core values of transparency, of accountability, integrity, equity, responsibility in corporate governance. It is to ensure that corporate vehicles do not become an impervious device for obtaining individual profit without individual responsibility. But the concept of corporate governance, the concept of corporate social responsibility as merely corporate good governance, the concept of corporate social responsibility goes even further than good corporate governance. Corporate social responsibility is about good governance, no doubt, is about philanthropy, no doubt, but it's about much more than only those two concepts. At its core lies ethics, a sense of shared participation, a sense of responsibility, not only towards shareholders, but to all stakeholders and to society at large. It is all about the adoption by businesses and companies of a sense of shared values, more nurtured from within and less imposed from without. It is, of course, a different matter that for every example of ethical corporate functioning, numerous corporate scams and scandals litter the legal and moral landscape. For every corporate innovation like eChopal, which leverages information technology to confer power and expert knowledge to the smallest farmer and aligns and aggregates farm output, there are numerous Enrons and Tycos. Truth cannot be compromised in a discussion like this, especially not one in the presence of a Mahanatma like Acharya Mahapragya. And therefore, let me touch on two unpopular and unpleasant aspects of ethics in business before moving on to other issues. Most accountancy firms, including Arthur Andersen, who were auditors to Enron, were not only auditors, but also had huge management consultancy contracts with Enron. Fees earned for the latter management consultancy contracts far outstripped, many times over, the fees paid in their capacity as auditors. Pointing out wrongdoing as an auditor is unlikely if that risks you losing your management consultancy contract. The power of corporations, therefore, to hire and fire auditors once led an outside objective observer to lament
an ethical conundrum. He said that it amounted to an accused having the power to fire the judge trying him in a case if the judge was likely to come to a finding of guilt. Since society no longer has the overarching vision and spiritual enlightenment of seers like Gandhi, like Vivekananda, like Aurobindo, and since pathfinders like Acharya Mahapragya are few and far between, we lurch from one spiritual crisis to another. Indeed, the spiritual crisis is at the root of all our other crises and shortcomings, be it the political crisis of a fragmented polity and a fractured consensus, be it an economic crisis of transition from a controlled economy to a liberally, globally integrated economy, be it a social crisis of the breaking up of the joint family support systems and structures, be it the demographic crisis of galloping population growth. In my own profession, and I possibly cannot point fingers without turning to that, the words of Yale Law School Dean, Mr. Kronman, what he said about American lawyers can easily be transplanted to the Indian legal scene. He said, I quote, in a book which is written, he said, "This book is about a crisis in the American legal profession. Its message is that the profession now stands in danger of losing its soul. The crisis, in a sense, is a crisis of morale. That approach can really change only when we remember that we have not inherited this earth from our forefathers, but we have borrowed it from our children." Legal education has to introduce mandatory comprehensive courses, presently too far between and too few, on legal ethics. An All India Code of Ethics for the legal professions, for the judges alike, is the need of the hour. Even without legal or penal sanction, its very existence will deter casual violation. The legal profession deals with high stakes of life, whether it is life, liberty, property, reputation, or dignity of a person. One has to remember that a profession must be kept separate and must remain somehow separate from a business. An element of service is very much a part of a profession, which is more than a mere earning of a livelihood. The crucial condition precedent for creating ethics in society, and ethics in business is only a part of that, is really a focus or a refocus on value-based education. The irony is that Indian tradition and culture has shown us the way for centuries. It encapsulates the three jewels which provide the framework of value-oriented education. The concepts of Gyan, Darshan, and Charitra reflect a holistic approach, which insists that knowledge of life, of universe, of mind, and of matter must lead to the right perception, the right perspective, which in turn must lead to right conduct and right character. We need to rebuild the moral fiber and the patriotic texture of our civil society, which appear to suffer from all, not one, all the deadly 7 sins itemized by Mahatma Gandhi. And let me remind you of those 7 sins, well known to many of you, no doubt. The first was politics without principles. The second was wealth without work. The third was business without morality. The fourth was education without character. The fifth was pleasure without conscience. The sixth was science without humanity. And seventh was worship without sacrifice. I will end with an inspiring poetic prayer which reminds us that though we are living under law, the quality of governance depends on the quality of human beings who make those laws and administer and adjudicate them. The poem, which is the translation, goes something like this. It says, "God give us men, a time like this demands, strong minds, great hearts, true faith, and ready hands. Men whom the lust of office does not kill, men whom the spoils of office cannot buy, men who possess opinions and a will, men who have honor, men who will not lie, men who can stand before a demagogue and damn his treacherous flatteries without winking, tall men, sun-crowned, who live above the fog, in public duty and in private thinking." There is an endearing rustic saying which describes the joy of the peacock in his splendorous plumage and his tearful sorrow and grief when the peacock looks at its own unshapely legs. To an extent, it is equally true. On the one hand, in our pride, in our democratic plumage, and the shame and concern at the same time, we must feel at our ugly feet and in the cancerous growth of crime, corruption, strife, and violence in our democratic life.
Democratic governance has its flaws, its faults, its pitfalls, its limitations, its failures. But it also has promises to keep the promises of justice, liberty, equality, and fraternity, as well, of course, as the promise of people's constructive and creative participation. I do not know if the best or the worst is yet to come. Thank you very much. आयशर ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस मिस्टर भार्गव कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मिस्टर भार्गव विदेश संचार निगम लिमिटेड और वात्सला इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। उनसे मेरा विनम्र अनुरोध उनके वक्तव्य के लिए। It's indeed an honor for me to present the industry perspective on this very, very important subject to this very distinguished audience this morning. The subject says ethics is good business. The first dilemma, the first ethical question we in corporate world face is, what is good business? Do we have the understanding? Whose expectations are we talking about? From whose perspective are we saying it is good business or bad business? There are insiders, there are outsiders who have expectations. Is the good business when we are creating maximum shareholder value, one shareholder's value, the majority shareholder value, or all shareholders' value? Is it good business when we are promoting the interest with a balance of all stakeholders, employees, supply chain members, from customers at one end to raw material suppliers at the other end? There are outsiders, the media, the government, the community, the environment. Who are we talking about when we say, I run a good business, I target a good business? Now, I've said too many things. Sustained manner, all stakeholders, present value of future expectations. But if you just mull over it, I think each one of us will find our own answers to convert this into tangible, objective, annual, triannual, 5-year goals. And I think this is where the individual ethics comes in. Who all do I consider as stakeholders of my business? What do I think are their future expectations from me? And how can I deliver it in a sustained manner? To me, ethics is learning what is right and what is wrong, analyzing, thinking. Because values do give you the parameters, the cherished beliefs, which not only control or lay down the boundaries for your policies and actions, but also give you a boundary to think within. And it is the thinking which has to be ethical, and which is ethical in the corporate context, which will lead to sustained growth. And if you can find what is right and wrong, analyze, think, and then act what you think is right, is what is ethical to my mind. In a larger corporate context, let me say, business ethics would perhaps fall into 3 broad areas. The first, what I would call the management mischief. A very typical illegal or questionable practices, from balance sheet to publication to bribe to corruption to everything else. The second is the moral maze, where we have to take managerial call on a daily basis, and where there could be potential conflict of interest. Things like wrong use of company resources, incorrect use, not necessarily only personal misuse, misinterpretation of contracts, the spirit versus the letter. In a business dealings, these are day-to-day issues which managers have to deal with. What I would call intellectual immorality is also a question of ethics. And third, and not the least but most important, is the dilemma, where the individuals have to deal with
and take call in situations where there is no clear indication of morality, law or otherwise. मैं अनुरोध करती हूँ श्री शिवराज जी पाटिल से उनके उद्घाटन भाषण के लिए। प्रथम मैं आचार्य श्री युवाचार्य श्री को प्रणाम करता हूँ। आज की इस चर्चा में आचार्य श्री जी उपस्थित हैं और इस विषय पर अधिकार वाणी से बोलने का उनका ही अधिकार है, ऐसी मेरी मान्यता है। ये विषय लगता है कि केवल बिजनेस करने वालों के लिए ही यहां पर रखा गया है। एथिक्स इज गुड बिजनेस। मैं समझता हूं कि इस विषय का संबंध पैसे से है, अधिकार से है और न्याय से भी है, और इसीलिए वो केवल ट्रेडिंग या इंडस्ट्री में काम करने वाले ही भाइयों के संबंध में है, ऐसा नहीं माना जा सकता। इस विषय का सबसे मुश्किल जो हिस्सा है वो है इथिक्स क्या है ये समझ लेना, प्रामाणिकता क्या है ये समझ लेना, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। कबीर के दोहे हम लोगों को सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि पाप से लक्ष्मी जाती है और दुख से शरीर नष्ट हो जाता है। मतलब यह है कि लक्ष्मी के लिए पाप न कीजिए, धन के लिए पाप मत कीजिए, और ऐसा बर्ताव न कीजिए जिसकी वजह से आपका शरीर खराब हो जाए। मगर शायद उन्हीं के पुत्र ने कहा कि पाप बिन लक्ष्मी नहीं, दुख बिन नहीं शरीर। अब इथिक्स क्या है इसमें? फिर दो महानुभाव दो प्रकार से कह रहे हैं। क्या इथिक्स है इसमें? धन के बारे में मन में घृणा नहीं है, मगर धन के बारे में अटैचमेंट भी नहीं है। घृणा भी नहीं है और अटैचमेंट भी नहीं है, निष्प्रभाव है। अब यहां पर हम संसार में जीते हैं तो धन चाहिए कि नहीं चाहिए? हर आदमी तो धन कमाने के लिए कोशिश कर रहा है। कुछ ही महानुभाव हैं जो धन कमाने की कोशिश में नहीं है, हर आदमी कमाने की कोशिश कर रहा है। और मिलने के बाद उसका क्या दृष्टिकोण है उस धन की ओर, कितना जुटा हुआ है उसके धन के साथ, और कितनी उस मन में उस धन के बारे में आकर्षण निर्माण हुआ है, यह महत्व की बात है। और इथिक्स, बिजनेस इथिक्स आपको इसमें से निकल कर आएगा। अगर प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, तो जो भी हमारे पास है उसका उपयोग करना जरूरी है, और उससे कुछ और निर्माण करके उसकी कीमत और बढ़ाना जरूरी है। मगर किस पद्धति से करते हो, किस भाव से करते हो, ये बहुत ही जरूरी है। सरकार में जो लोग रहते हैं, लोग उनको काम करना पड़ता है, और कुछ लोग जो है उनको तो लड़ाई भी करना पड़ता है। पुराने जमाने में तो
राजा महाराजा तो लड़ाई करते थे, आज के ज़माने में तो जनरल्स और मिलिट्री के आदमी लड़ाई करते हैं। तो हमें लड़ाई करना जरूरी है या नहीं जरूरी है? हाथ में हथियार लेके किसी को मारना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सवाल यह पैदा हो जाता है। और पूरी गीता तो यह कहती है कि लड़ो। गीता का तो कहना है कि हथियार मत रखो, हाथ में हथियार लेके लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। बड़े बुजुर्ग हैं उनके खिलाफ भी लड़ो, भाई और बराबर के हैं उनके खिलाफ भी लड़ो, और तुमसे कम उम्र में भी है उसके खिलाफ भी लड़ो, मगर लड़ो, लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। सरकार चलाने वाले को लड़ना भी पड़ता है, हथियार उठाना भी पड़ता है, मगर किस दृष्टि से वो हथियार उठाता है, ये अहम सवाल है। किस भावना से करते हो? मेंसरिया जिसे हम कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में काम करने वाले जो लोग हैं वो मेंसरिया। डॉक्टर भी हथियार हाथ में लेकर किसी की चीर फाड़ करते हैं, और सैनिक भी हथियार लेकर किसी से लड़ते हैं, और डाकू भी दूसरों को मारते हैं। किस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, या करते समझ के कर रहे हैं, या अपने लिए कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, यह सवाल है। और उसमें सही इथिक्स है। अगर जान बचाने के लिए हथियार लेकर किसी की ऑपरेशन करते समय अगर कोई मर जाए तो वो अपराध नहीं है। लड़ाई करते समय एक ने हजारों के जाने भी जाती हैं तो भी उसको अपराध नहीं माना जाता है। मगर अगर डाकू हाथ में पिस्तौल लेकर किसी का धन लूटने के लिए आकर पिस्तौल चलाता है तो उसको अपराध माना जाता है। मेंसरिया, किस उद्देश्य आपने किया है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए यह काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाप से घटे लक्ष्मी, दुख से घटे शरीर। और दूसरे कहते हैं कि पाप बिना लक्ष्मी नहीं, दुख बिना नहीं शरीर। अगर महाभारत अगर हम पढ़े, उसके अंदर जो पॉलिटिकल थ्योरीज हमको जो दिखाई देती हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। शुकमुनि आते हैं और धृतराष्ट्र को उपदेश करते हैं, कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है जो समय मिल जाए उसका उपयोग करना। अगर पड़ोसी कमजोर है तो उसके ऊपर हमला करो, अगर पड़ोसी मजबूत है तो उसके साथ दोस्ती करो, अगर वो दोस्ती के लिए तैयार नहीं है तो फिर टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू करो उसके देश में। मैकियावेली का प्रिंस यही कहता है, शुकमुनि यही कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये कुछ चीजें हमको देखने के लिए मिलती। युधिष्ठिर को जब रणांगन में पड़े हुए हैं तो उपदेश कर रहे हैं कि राजा का क्या कर्तव्य है। कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि उसकी ट्रेजरी बहुत स्ट्रांग हो, पैसा राजा के खजाने में होना चाहिए। अगर राजा का खजाना खाली हो गया तो वो राज्य करने के काबिल नहीं माना जा सकता। वो कहते हैं कि उसके प्रधान हो वो अच्छे विचार के हो, सोचने वाले हो, आगे का देखने वाले हो, काम करने वाले हो, और जो चीज सही नहीं है ये हम जानते हुए भी सही है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो प्रामाणिक नहीं हो सकती, वो इथिकल नहीं हो सकती। और यही कहा गया। और ये भावना कब आ सकती है मन में? तभी आ सकती है जब सही सुख किस में है, सही प्रगति किस में है, ये मनुष्य को मालूम हो, तभी वो भावना आ सकती है। और ये भावना तभी आ सकती है, ये जानकारी, ये ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब वो अच्छी तरह से जानता है कि ये सारा जो कुछ भी है वो केवल वो ही अकेला नहीं कर रहा है, मगर सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और उसमें अच्छाई और बुराई का सबका ही उसके अंदर हिस्सा है।
ये जब मानता है, और यही ज्ञान गीता के अंदर दिया हुआ नजर आता है। निष्काम कर्म की जो उपदेश किया गया है उसी से ही प्रामाणिकता और एथिक्स बन सकती है। और आदमी जब तक स्थितप्रज्ञ नहीं है, सुख दुख में समभाव से देखने वाला नहीं है, तब तक इथिकल बिहेवियर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये काम वो वकील को भी लागू है, दुकानदार को भी लागू है, राजकारणी को भी लागू है, सरकारी नौकर को भी लागू है, लड़ाई करने वालों को भी लागू है, और छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा काम करने वालों को भी लागू है। इसकी जानकारी अगर प्राप्त हो तो मैं समझता हूं फिर किसी काम में कोई मुश्किल नहीं है। और इसका ध्यान अगर सब तरफ फैला हुआ है तो फिर हर काम में मुश्किल आ सकती है। ऐसी चर्चा में जबकि हम अलग अलग पहलुओं की तरफ देखते हैं, विज्ञान की तरफ दृष्टि से देखते हैं, हम प्रशासन की दृष्टि से देखते हैं, हम अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, हम आज के और भविष्य के बारे में सोचकर काम करते हैं, तो ही उसमें से रास्ता निकल कर आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रामाणिक हैं, मेरी यह धारणा है। प्रामाणिकता का प्रादुर्भाव है, मगर इसमें अप्रामाणिक भी लोग हैं, अनइथिकल भी लोग हैं। और कोई अच्छा प्रामाणिक आदमी भी कभी कभी अप्रामाणिक हो सकता है। उस समय उसको जागते रहना और उस समय के नहीं आए वो काम करना जरूरी है। और इसीलिए प्रामाणिकता पे विश्वास करके, उसके एफिकेसी पर विश्वास करके, उसकी क्षमता पर विश्वास करके जब कभी अप्रामाणिकता नजर आती है, उसका मुकाबला करना, उसको हटाने की कोशिश करना, उसको कम करने की कोशिश करना ही हमारी सही नीति हो सकती है। और ऐसी चर्चा से वो हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आज के इस सभा में महाप्रज्ञ जी के, आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से, उनके उद्बोधन से इस प्रकार की भावना हमारे मन में निर्माण हो, ऐसी अपेक्षा और प्रार्थना करते हुए आपको मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण विराम देता हूं। ये था महामहिम गृह मंत्री जी का एक बेबाक चित्रण आज की परिस्थिति का। ज्योतिपुंज श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ से मेरा भक्ति भरा अनुरोध कि वो हमें दिशा बोध प्रदान करें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शताब्दी का अवसर, शतायु होना महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति ने अच्छा जीवन जिया। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आज शतायु हो रहा है, इसका अर्थ है कि इसने भी अच्छा जीवन जिया है। यह आर्थिक संस्थान है, इसलिए अपेक्षित है कि आज हम अर्थ के बारे में चिंतन करें। एक अमेरिकन पत्र टाइम का एक लेख मैंने पढ़ा, उसका शीर्षक है द रियल ट्रूथ अबाउट मनी। बहुत अच्छा लगा। हम अर्थ के संदर्भ में यथार्थ दृष्टि से विचार करें, सापेक्ष दृष्टि से विचार करें। हमारे सामने विचार की अनेक दृष्टियां होती है, एक कंसेप्चुअल ट्रुथ, एक रिलेटिव ट्रुथ और एक एब्सोल्यूट ट्रुथ। क्योंकि सारा व्यवहार हमारा कंसेप्चुअल ट्रुथ के आधार पर चल रहा है, तो हम यथार्थ की दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से विचार करें
जब हम सापेक्ष दृष्टि से विचार करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि अर्थ बहुत उपयोगी है और उसके बिना कुछ भी नहीं होता। और इस पर सापेक्ष दृष्टि से कहूं तो मुझे कहना चाहिए कि मनी इज एवरीथिंग। तो इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। धन सब कुछ है, यह कहने में मुझे संकोच नहीं होता, क्योंकि हमारे बहुत सारे अध्यात्म के आचार्यों ने अर्थ के लिए लिखा है, अर्थमनर्थम भावय नित्यम। अर्थ अनर्थ का मूल है, पाप का मूल है, जैसा अभी पाटिल शिवराज जी ने कहा। अर्थ अनर्थ का मूल है, पाप का मूल है, पाप के बिना आता नहीं है। इसलिए अर्थ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, पुराने संतों ने काफ़ी लिखा, पर मैं जब सापेक्ष दृष्टि से देखता हूँ तो यह कहने में मुझे संकोच नहीं होता कि अर्थ बहुत उपयोगी है। और मैंने उसकी उपयोगिता पर विचार भी किया है कि अर्थ क्यों उपयोगी है। तो उपयोगिता के 5 अंग मेरे सामने है। पहला है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। अर्थ है वह जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, मीन्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। उसका एक साधन है, उसके बिना कुछ नहीं होता। दूसरा तत्व है भौतिक विकास का साधन। अर्थ के बिना भौतिक विकास नहीं होता, मीन्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके बिना वह होता नहीं है। तीसरा सुविधा का साधन, धन के बिना सुविधा नहीं मिलती। आज हम बैठे हैं, भीतर अंधेरा है पर प्रकाश भी हो रहा है, भवन भी बना हुआ है और शायद गर्मी नहीं है, एसी का प्रयोग भी हो रहा होगा, हो रहा है, गर्मी नहीं है। ये सारी सुविधाएं अर्थ के बिना प्राप्त नहीं होती। एक गरीब की झोंपड़ी में न तो ये प्रकाश मिलेगा, न वातानुकूलन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सुविधा का साधन है, मीन्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। चौथी बात, अर्थ सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन है। जिसके पास अर्थ नहीं होता उसे सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती। मैंने देखा है, बहुत पुराने ज़माने में देखा कि संस्कृत की गोष्ठी हो रही है, उसका आधिपत्य एक शेठ साहब कर रहे, अध्यक्षता वे कर रहे, जो कि संस्कृत का अक्षर भी नहीं जानता। प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा साधन है, मीन्स ऑफ सोशल रेपुटेशन। पांचवी बात आपको शायद नहीं लग सकती है जो मैं कह रहा हूं, कि शांति और सुख का साधन। यह बात तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि मैं कह रहा हूं कि शांति और सुख का साधन है, जबकि कहा यह जाता है कि अर्थ है वह अशांति और दुख का साधन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं शांति और सुख का साधन है, मीन्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। शांति और सुख का साधन है। शायद आपको आश्चर्य होगा, पर मैं जब सापेक्ष दृष्टि से कहता हूं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एक गरीब आदमी है, बेचारा दुखी है, रात दिन रोटी की चिंता रहती है, और हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि बहुत अशांति है। किस बात की अशांति? कि खाने को रोटी नहीं मिलती। तो अब आप सोचें कि अर्थ शांति का साधन है या नहीं। उसको शांति मिला, जीवन के साधन मिले और बिल्कुल शांति हो जाती। और सुख का साधन भी है। हम यह एकांगी दृष्टि से न माने कि सुख का साधन नहीं है, उपयोगिता है, वह समस्याएं हैं। पहली समस्या अनैतिकता, इमोरलिटी, अनैतिकता। दूसरी भ्रष्टाचार, करप्शन,
अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। 4 तारीख को राष्ट्रपति हमारे पास आए, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार बहुत है, ये कैसे मिट सकता है, आप सजेस्ट करें। तो भ्रष्टाचार भी अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर अर्थ की समस्या न हो तो यह करप्शन की कोई समस्या नहीं हो सकती। तीसरा अपराध, क्राइम, यह भी शायद अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर अर्थ की समस्या न हो तो न्यायालय भी बहुत कम और ये एडवोकेट्स भी बहुत कम हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं रहेगी, कोई आवश्यकता भी नहीं है। अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। जरूरत वहीं पड़ती है जहां अर्थ का प्रश्न है। जहां अर्थ नहीं वहां आप अपेक्षा नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक वकील दिल्ली के घर गया था, कोल्लू चल रहा था। बात करते करते वकील ने पूछा कि इसके आंख पर पट्टी क्यों बांधी। तो तेली बोला कि इसको यह पता न लगे कि मैं एक ही जगह की परिक्रमा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ, इसलिए पट्टी बांध। फिर आगे बात शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा कि इसके गले में घंटी क्यों। तेली बोला कि मुझे पता लग जाए कि बैल चल रहा है या स्थिर है, इसलिए घंटी बांधी है। तब वकील बोला कि मैं तो खड़ा खड़ा घंटी बजा देगा तो। तेरी बोला बैल है, वकील नहीं। आपने सिर्फ वकीलों को सुना है। हाथ में कह सकता हूं कि अगर ये अर्थ नहीं हो तो अपराध नहीं, क्राइम नहीं, और अपराध के बिना फिर न्यायालयों की, वकीलों की भरमार नहीं। बहुत थोड़े में काम हो सकता है। पर यह जो बाढ़ आ रही है, शायद उस बाढ़ की आवश्यकता नहीं होती। और अर्थ की चौथी समस्या है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण। आज कितनी क्रूरता होती है, अर्थ के कारण कितना क्रूर व्यवहार होता है, ये हम बहुत जानते हैं। क्योंकि हमारा जनता के साथ संपर्क, गांव में जाते हैं, गांव में रहते हैं, वो 8 महीना तो घूमते रहते हैं, इतना संपर्क है। तो शोषण की भी अनेक कहानियां हमें सुनने को मिलती है। ये सारा शोषण होता है। 5वां है प्रलोभन। प्रलोभन भी अर्थ के साथ जुड़ी हुई बात है। ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं, आदमी गलत काम कर लेता है, अकरणीय काम कर लेता है। टेम्पटेशन, प्रलोभन। और छठी समस्या है ईर्ष्या, जेलेसी। ईर्ष्या भी बहुत है। धनिक लोगों में हमने जो ईर्ष्या देखी है, एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न देखा है। यहाँ तक नहीं, एक अच्छा युवक जो आर्थिक प्रगति कर रहा था, आसपास के सारे दुकानदार ईर्ष्या में आ गए और ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि उसको किसी बहाने बुलाया गया और वह वापस आया ही, हत्या कर दी। यह भी बहुत होता है इसके साथ। और 7वां है, जो 7वीं समस्या है, भय, फियर। भय तो जुड़ा रहता ही है। आजकल युवकों का हार्ट फेल बहुत हो रहा है, हार्ट अटैक बहुत हो रहा है। यह जो प्रॉब्लम है हार्ट की, इसका एक बड़ा कारण है भय। और वह ज्ञात अज्ञात रूप में इतना भय बना रहता है, और वह भय अर्जन का जितना नहीं होता उतना सुरक्षा का होता है। बड़ी समस्या है सुरक्षा के लिए। 8वां जो सूत्र है समस्या का, वह है टेंशन, तनाव। तनाव भी बहुत रहता है। और 9वां है अशांति। आप देखेंगे
मैंने 5 में बताया कि जो एक साधन है शांति का और अशांति का भी साधन है, हमें सापेक्ष दृष्टि से दोनों पर विचार करना है, एकांगी दृष्टि से हम नहीं कर सकते। और 10वां है दुख, अनहैप्पीनेस। वहाँ उपयोगिता में भी शांति और सुख, और जहाँ बाधक तत्व है उनमें अशांति और दुख। अब इस वक्तव्य पर मैं विचार करूं कि अर्थ की उपयोगिता है, सापेक्ष दृष्टि से विचार करें कि अर्थ की उपयोगिता है, इसलिए आर्थिक विकास की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और अर्थ के साथ समस्याएं जुड़ी हुई है, उनका समाधान भी खोजना है। यह सारा एथिक्स इज गुड बिजनेस, यह समाधान खोजने का प्रयत्न है कि हमारा व्यापार अच्छा कैसे हो सके, व्यापार में आने वाली जो अप्रामाणिक समस्याएं हैं उनका समाधान हम कैसे कर सके। मैंने इस पर अब एक प्रश्न मेरे सामने आता है। महाभारत को पढ़ें, गीता को पढ़ें, बौद्धों के पिटकों को पढ़ें, जैन आगमों को पढ़ें, सब में नैतिकता की आचार संहिता आपको मिलेगी, पर पालन कोई नहीं करता, पालन नहीं हो रहा है। जो प्रवक्ता हैं वे भी पालन नहीं कर रहे हैं, श्रोता भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आखिर क्यों भाई, ये क्यों नहीं कर रहे? एक बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण क्या है? आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पारिस्थितिक दृष्टिकोण, इन सब को मिलाकर विचार करना चाहिए। समस्या इसलिए नहीं सुलझ रही है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम कोई बात सोचते नहीं है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ भी विचार नहीं हो रहा है, कानून के क्षेत्र में भी उस दृष्टि से विचार नहीं हो रहा है, और नैतिकता के क्षेत्र में भी विचार नहीं हो रहा है। कारणों पर हम विचार करें तो कारण क्या है, जो समस्या है हमारे सामने क्या है? पहली समस्या यह है कि 4 संज्ञाएं मनोविज्ञान की दृष्टि से इंस्टिंक्ट, हमारी मौलिक मनोवृत्तियां, तो 4 इंस्टिंक्ट, ऐसे बहुत बड़ा वर्गीकरण हो सकता है। पहली बात है कि जो आहार संज्ञा, हंगर इंस्टिंक्ट, भय संज्ञा, फियर इंस्टिंक्ट, मैथुन संज्ञा, सेक्स इंस्टिंक्ट, और परिचय संज्ञा, पजेसिवनेस इंस्टिंक्ट, ये 4 मौलिक मनोवृत्तियां जब व्यक्ति में पजेशन की, संग्रह की मनोवृत्ति है और उसका परिष्कार नहीं किया जाता तो बड़े से बड़ा आदमी गलत काम कर लेगा। जो लगता बहुत अच्छा है गलत काम कर लेगा, जो साहूकार लगता है डाकू बन जाता है, चोर बन जाता है। कारण क्या? कि भीतर तो वह समस्या विद्यमान है, इनर ऑब्स्टेकल, भीतर का अवरोध, भीतर की समस्या, अंतर की प्रॉब्लम है, वह विद्यमान है, इसलिए कभी भी कर सकता है। परिस्थिति आई और वह फिसल जाएगा। जब तक हम इन मौलिक मनोवृत्तियों का परिवर्तन न करें, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। न भ्रष्टाचार मिट सकता, न अपराध कम हो सकता, और न हिंसा कम हो सकती, न आतंकवाद और उग्रवाद कम हो सकता, हो नहीं सकता। हमें परिस्थितियों के साथ विधान बनाने वाला
विधायिका विधान बना देती हैं, कानून, और जो एग्जीक्यूट करने वाले क्रियान्वित कर देते हैं, और न्यायपालिका अपराध पर अपना निर्णय दे देते हैं। परंतु ये तो सारा हमारा बाहर का परिष्कार है, किंतु जब तक भीतर का परिष्कार नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं कि हिंसा कम, अपराध कम, भ्रष्टाचार कम और नैतिक आचरण हो, यह संभव नहीं लगता। इसका दूसरा पहलू यह है, क्योंकि मैं हर बात पर आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों से विचार करता। अध्यात्म और दर्शन तो हमारा विषय है ही, किंतु विज्ञान को भी मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि वैज्ञानिक खोजों ने जीवन की समस्याओं को इतना उजागर किया है कि उनको हम समझे बिना समस्या को सुलझा नहीं सकते। तो दूसरा दृष्टिकोण ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस देयर आर 3 layers in the human brain responsible for human behavior। पहला है रेप्टेलियन ब्रेन, दूसरा हमारा मेमिलियन ब्रेन जिसको और कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम, और तीसरा है नियोकॉर्टेक्स। हमारा जो भी काम होता है आज विकसित है हमारा नियोकॉर्टेक्स, जो रीजनिंग माइंड भी है, जिम्मेवार इन सब के लिए, चिंतन के लिए, और हम नियोकॉर्टेक्स का प्रयोग कर अच्छी अच्छी बात सोचते हैं, अच्छा कानून बनाते हैं, अच्छा निर्णय करते हैं, किंतु पहुंचते वहीं है फिर जहां है। इसका कारण क्या कि जब तक रेप्टेलियन ब्रेन का परिष्कार नहीं होता, नियोकॉर्टेक्स के द्वारा, रीजनिंग माइंड के द्वारा हम बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं, अच्छी बात सोचते हैं, किंतु रेप्टेलियन ब्रेन का प्रभाव होता है हमारा किया कराया साफ। एक कहावत चलती है राजस्थानी में, ऐसी सूक्त में कहावत है कि कात्यो पींजो कपास। दिन में काता, रुई काती, पूनिया बनाई और रात को रख दी, फिर सूरज उगा, दिन में देखा तो फिर कपास का कपास, रुई की रुई। ऐसा कुछ हो रहा है कि जो किया जा रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि जब तक रेप्टेलियन या एनिमल ब्रेन भी इसको कह सकते हैं, जब तक एनिमल ब्रेन की लेयर का परिष्कार नहीं होता तब तक आदमी हर जगह फिसल सकता है, कोई कठिनाई नहीं होती। और हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, इतने बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, उनके यहाँ भी जब छापे पड़ते हैं इनकम टैक्स के अधिकारियों के, सीबीआई के अधिकारियों के, और वहाँ जो कुछ मिलता है, आज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार से आगे और शब्द आ गए, घोटाले, महाघोटाले, उनकी इतनी लंबी तालिका है। आजकल ही आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कितना हुआ है। सारा ये सारा क्यों होता है? इतने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सब बात जानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? कोई अभाव के कारण नहीं कर रहे, वे कर रही हैं इस परत के कारण, इस मस्तिष्क की इस परत के कारण, एनिमल ब्रेन या रेप्टेलियन ब्रेन के प्रभाव में आते हैं, तब सारा ऐसा काम कर लेते हैं। अब मैं इस लंबी बात को संक्षेप करूं कि एथिक्स या नैतिकता या प्रामाणिकता के अभाव में आज क्या हो रहा है। एक तो कारण है कि विकास की असंतुलित धारणा बन रही। विकास का युग है, चारों तरफ डेवलपमेंट की चर्चा है, पर बैलेंस नहीं है। हमारा विकास संतुलित नहीं हो रहा है, संतुलन नहीं है। और जब तक संतुलित विकास नहीं होगा तब तक
समस्या का समाधान नहीं हो सकता। संतुलित विकास का अभाव यह है कि यहाँ उद्योगपति व्यापारी बैठे होंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे, मुझे तो बड़ा आदमी कहने में संकोच होता है, क्योंकि जहाँ आर्थिक विकास की यह स्थिति हो कि 10, 20, 50, 40 करोड़ आदमी तो स्वर्गीय वैभव का भोग करे और 30-40 करोड़ लोग रोटी के लिए तरसते रहे, उससे आर्थिक विकास या यानी विकसित राष्ट्र ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच होता है। किंज ने स्वयं स्वीकार किया था कि हमारी अर्थशास्त्र की 2 असफलताएं रही है कि हम अपेक्षित लोगों तक अर्थ को नहीं पहुंचा सके। आज धन की जो स्थिति बनी है कि जैसा कई बार सर्वे में आता है कि इतने हजार या इतने 100 लोग तो वो करोड़पति बनते जा रहे हैं। दूसरी ओर हमने ये देखा है कि आंखों से देखा है, अहिंसा यात्रा के दौरान देखा ऐसे लोगों को कि जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती, बच्चे भूखे रहते हैं। हमने पूछा कि क्या करते हैं आप लोग, बच्चे भूखे रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक वक्त तो खिला देते हैं और दूसरी वक्त मार पीट कर सुला देते हैं। उस देश को हम क्या माने? क्या हम इस आर्थिक संस्थान को क्या कहें? अध्यक्ष जाने और जाने, हम तो क्या नहीं कह सकते। अर्थव्यवस्था को हम क्या कहें? जहां इस प्रकार की स्थिति हो, बड़ा कष्ट होता है कहने में भी कि उसको क्या कहा जाए। इसका कारण क्या है कि धनपति हैं, जिनके पास प्रचुर धन है, वे उपभोग की सीमा नहीं कर रहे। उपभोग की सीमा नहीं, इतना संग्रह करते जा रहे हैं, इतना उपभोग करते जा रहे हैं और इस प्रकार समाज के साधारण आदमियों के सामने समस्याएं पैदा करते जा रहे हैं। जब तक उपभोग की सीमा न हो, हिंदुस्तान की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। महामात्य कौटिल्य ने और भी अनेक नीतिकारों ने, प्राचीन आचार्यों ने कहा था कि शासक को विजयी, इंद्रियजयी होना चाहिए। उस भाषा में मैं कहूँ तो धनपति को भी इंद्रियजयी होना चाहिए। वह तो नहीं हो रहा है और विलासिता बढ़ रही है। न जाने कितने क्या क्या खुल रहे हैं, नाइट क्लब आदि आदि खुल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। यह सारा इसलिए हो रहा है कि हमारे उपभोग की सीमा नहीं है। मैं अपनी बात संपन्न करूं। आचार्य तुलसी ने आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया था, अर्जन और विसर्जन। अर्जन को रोका नहीं जा सकता। एक बार रामधारी सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ने मुझे कहा कि आप लोग व्यापार न करने का संकल्प कराते। मैंने कहा हम नहीं कराते, हम तो ये करते हैं कि व्यापार के साथ 2 शर्तें हमारी, जो महावीर के द्वारा है, आचार्य तुलसी के द्वारा प्रतिपादित, वह यह है कि अर्जन में साधन शुद्धि और अर्जन के बाद उपभोग का संयम, सीमा कर, तो फिर अर्थ में कोई आपत्ति नहीं। ये दोनों नहीं हो रहा है, इसीलिए आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो अर्जन और विसर्जन, अर्थ के अर्जन में साधन शुद्धि का विचार, नैतिकता का विचार और अर्जित धन राशि के उपभोग का संयम और विसर्जन, यह अर्जन और विसर्जन का सूत्र आज की अर्थव्यवस्था को नया मोड़ दे सकता है। ओम आर।
ये थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ, जो अनैतिकता के इस घोर अंधकार में अणुव्रत का नन्हा सा दिया अपने हाथ में लिए प्रामाणिकता और नैतिकता का उजाला फैला रहे हैं। आदरणीय श्री आचार्य महाप्रज्ञ जी, आपसे प्रेरित हो और आपके आशीर्वाद से मैं इस सभा को 3 शब्दों में संबोधित करना चाहूंगी। भाइयों और बहनों, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री शिवराज जी पाटिल आकर उन्होंने इनॉग्यूरल एड्रेस दिया है, लेकिन मैं इसे एक इनॉग्यूरल एड्रेस ही नहीं मानती हूँ। उनका जो भी उन्होंने एक एक शब्द कहे हैं वो उनके अंतर आत्मा से निकले हैं, जिससे कि उनकी विचारधारा ही नहीं पर उनका पूरा चरित्र हमें समझ में ही नहीं आया, लेकिन उन्होंने बड़े सरल रूप से हमें ये समझाया है कि हम अपने डे टू डे काम के अंदर एथिक्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का किस तरीके से हम सलूशन निकाल सकते हैं। श्री शिवराज पाटिल जी, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राइड है कि आप हमारे होम मिनिस्टर हैं और हम सोचते हैं कि अगर आप की तरह और भी हों लीडर्स तो हमारे देश बड़े सही हाथों में है। श्री आचार्य प्रज्ञ जी के हम बहुत अनुग्रही हैं, क्योंकि उनके आने से वी हैव इंडीड on this such a special occasion of the centennial celebrations of the chamber, we have indeed been blessed. इसके अलावा आप सबको जो कि आप यहाँ आए हैं, मैं आपका अनुग्रह नहीं प्रकट करूंगी, रादर आप सबके बिहाफ पर मैं जो हमारे आदरणीय यहाँ पे आए हैं, सुबोध भार्गव जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, डॉक्टर LM सिंघवी जी, हमारे मेमानी जी ने जो कहा है, विनय कुमार जी ने जो कहा है, इन सब का मैं आपकी तरफ से अनुग्रह प्रकट करती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने हमें विचार करने पे मजबूर किया है, हमारी तीसरी आंख खोलने की चेष्टा की है। अतिथि सम्मान की विशिष्ट भारतीय परंपरा रही है। उसी के तहत मैं PhD चैम्बर के अध्यक्ष श्री KN मेमानी साहब से अनुरोध करती हूं कि वो विशिष्ट अतिथिगण का सम्मान करें स्मृति चिन्ह को भेंट करके। आचार्य श्री महाप्रज्ञ को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हम तो क्या लेंगे, हमारे कहाँ रखें? न तो जब भूमि है न पैसा है, रखेंगे कहाँ? आपका यहाँ बस आपकी भावना को हम ले लेते हैं, और तो